Well, Assalamu alaikum. This is third lecture for class 11th economics. So far, in Indian economy, we have discussed what is economy and what are the various types of economies, and how we can trace the stats of any economy at particular point of time. And we have completed what was the stats of Indian economy at the time of independence, and we have also uh, discussed what were the causes of backwardness of Indian agriculture at the time of independence. Now, in this lecture, we will discuss what was the stats of industrial sector, what were the stats of Indian industries at the time of independence. जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त क्या हालत थी इंडियन इंडस्ट्रीज की, ठीक. When we talk about industries, we can say that these are those entities which are engaged with the production of finished goods. We say that वो इंडस्ट्रीज वो चीज़ें होती है, वो फर्म्स होती है जो इकोनॉमी में फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करती है. At the time of independence, when we talk about the condition of Indian industries at the time of independence, a term suits for the status, that is systematic deindustrialization. Systematic deindustrialization means, when we talk about the word systematic, it implies that by the policies, by the we can say that discretionary policies of the government, they have degraded, they have decreased the industrialization process in India over the period of time. When we talk about the word industrialization, it means that the level of industrial activities, the level of industrial activities इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में क्या लेवल है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट मीन्स दैट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी. सो what we are getting from this term systematic industrialization, हमें क्या समझ आ रहा है? It means that sometime, or we can say that in past there have some sort of industrialization in case of Indian economy, and it was decreased, it was declined by the policies of the government, by the policies of the state over the period of time. With respect to Indian economy, it implies us two things, the two important things with respect to the Indian industrial sector at the time of independence. The first thing is that it implies the decay of handicrafts industries in India. Second thing, it implies the bleak growth of modern industry. Bleak means miserable, unhappy, or we can say that unsustained growth of modern industry. ठीक. So decay of Indian handicrafts, we will discuss these things in the three broad characteristics. The first thing is that when we talk about the stats of Indian industries at the time of independence, is that the handicrafts industry have completely decayed in India. Indian handicrafts was considered one of the growing, one of the best, one of the most demanding industry in the world before ब्रिटिश गवर्नमेंट. हाँ, हिंदुस्तान की जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, और एस्पेशली फॉर इट्स कॉटन प्रोडक्ट्स. what actually is handicrafts industry? Handicrafts industry actually is that very industry which are producing goods by hands. ठीक है, handicrafts. For example, أسۍ چھِ تِلہٕ کٲم کران, أسۍ چھِ کانگڑِ बनावन, أسۍ چھِ कॉटन क्लोथस पर तम नकाश करन, बाकी चीज़, उसको हम हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री बोल सकते हैं. तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो थी बिफोर ब्रिटिश, ये फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उसका मुस्लिम कॉटन जो था वो फेमस था ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड मुस्लिम कॉटन की एक कैरेक्टरिस्टिक थी, प्रॉपर्टी थी, दैट इट कैन पास थ्रू अ रिंग, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंडियन cotton. So we can say that with the policies of the British policies over the period of time, this handicraft industry has decayed. In the later section, we will discuss what were the causes, what are the causes of
these decaying handicrafts industry. ठीक. सेकंड थिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो था वो था लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज. जब हम आज़ादी के टाइम नज़र डालते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे तो वहाँ पे हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थे वो बहुत कम थे. उन वो हमें दिखाई दे रहे थे कुछ लिमिटेड एरियाज में. तिम कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पे वन. सो व्हाट आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कुमन वन? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर दोज इंडस्ट्रीज, दोज फर्म्स विच आर मैनेज्ड, which are established and which are controlled by government or state. تِم industries یِم گورمنٹ کنٹرول چھِ کران, یِم گورمنٹ ایسٹیبلش چھِ کران یا گورمنٹ ڈیولپ چھِ کران, تِمن چھِ أسۍ وَنان پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ. تہٕ آزٲدی کہِ ٹایمہٕ آسہٕ نہٕ یِم پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ییٚتہِ زیادٕ کینٛہہ. وۄنۍ اگر آسہِ تہِ مگر تِم آسہٕ کینٛہہ لِمِٹِڈ ایریاہن منٛز, تِم آسہٕ تِمن لِمِٹِڈ جاین منٛز یِمن منٛز برٹشس بینِفٹ اوس. دے ویر سیٖن اِن ریلویز, they were seen in power, they were seen in posts and telegraphs, they were seen in case of ports etc. So these were the things which were highly beneficial for the transportation of raw materials and the transportation of finished goods from the British. So we can say that जो public sector undertakings थी आज़ादी के टाइम वो बहुत ज़्यादा कम थी. अगर थी भी कहीं पे तो वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की सेक्टर्स पे हम देखते थे जहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल थे. थर्ड थिंग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का था दैट वाज लूप साइडेड इंडस्ट्रियल सेक्टर. लूप साइडेड मीन्स कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, और कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कम थी. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर वी क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज इनटू कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज and we can say that they are capital good industries. Consumer good industries are those industries which produce the consumer goods. यिम प्रोड्यूस करें क्या? कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स गई तिम गुड्स यिम डायरेक्टली ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करन. फॉर एग्जांपल एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग शुगर इट अच्छी डायरेक्टली हेकन यह पन्ने वांट खतर पन्ने यूज खतर इस्तेमाल करी. दैट इज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री. ठीक. कह चीज़ जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस गए पत् कर सो डायरेक्टली सोन वांट सेटिस्फाई. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम खेवान जो आइसक्रीम इंडस्ट्री वी कैन से दैट इट इज कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री. एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री इज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर एक्चुअली those machines which further capital goods are those goods which further increase the process of industrialization. यमो सहित बे process of industrialization हेकन करित. फॉर एग्जांपल कह चीज प्रोड्यूस कर, ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर, कह मशीन प्रोड्यूस कर, एंड इट दिस मशीन प्रोड्यूस a series of another products. ये machine है कि बाकी चीज़ प्रोड्यूस करित. फॉर एग्जांपल सेरी मशीन अनान, वी आर प्रोड्यूसिंग ब्रिक्स. ये ब्रिक्स मशीन यह एक्चुअली कह मशीन प्रोड्यूस कर्म. एंड दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस्ड दिस ब्रिक मशीन मे बी कॉल्ड एज कैपिटल गुड इंडस्ट्री. ठीक है. अत वन कैपिटल गुड इंडस्ट्री. यह पीरियड टाइम यम ज़्यादा यह दिवन. तो वन रीजन कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या यह लूप साइडेड. लूप साइडेड मीनस ज़्यादा अक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज ज़्यादा, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ज़्यादा कह तिक दे नीड हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट the stats of Indian industries at the time of independence, we can say that there were no modern industries. There were we can say that bleak growth of modern industries. The Indian handicrafts which were famous in all over the world have declined by the policies of the British, and there were no capital good industries, or we can say that there are lack of basic and heavy industries. जो basic industries थी इंडिया में वो नहीं थी. basic industries are those industries which have crucial importance in growth and development. यिम growth तो development खतरो वारिया ज़्यादा ज़रूरी छ आसान, and they were rarely seen in India at the time of independence. So we have concluded that agriculture sector was also backward,
Industrial sector was also backward at the time of independence. There was deindustrialization process due to the British policies. What actually are the causes of this systematic deindustrialization, or we can say that what actually caused the backwardness of Indian industries at the time of independence, or we can say that before independence क्या कौन से काजेज थे जिनसे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज थे आज़ादी के टाइम वो कम थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम थी. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट काज, क्योंकि मैं काजेज आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम कोई इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सिचुएशन देखनी पड़ती है और इसके बाद काजेज पढ़ते हैं और उसके बाद वी कैन से दैट तो हमें कुछ रिकमेंडेशंस देने होते हैं सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. So the first cause of this backwardness or systematic deindustrialization in case of India was discriminatory tariff policies. The policies of the state, or we can say that the trade policies of the state were discriminatory. They were not favorable for Indian industries. जो trade policies उस टाइम थे, जो tariff policies थे, that were not good for the Indian industries. तो यहाँ पे हमारे पास एक tariff होता है. Tariff क्या होता है? What is tariff? Actually the economy do foreign trade with the rest of the world. अगर ये हमारे पास इंडिया है, अगर ये हमारे पास वर्ल्ड है, it exports and imports with the rest of the world. ये छ exports करन, ठीक, and it imports from the rest of the world. Clear? तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकता है, it can impose a tax on exports or it can impose a tax on imports. ठीक, ये टैक्स इम्पोज कर सकता है इंपोर्ट्स पे या टैक्स इम्पोज कर सकता है एक्सपोर्ट से. एज ए रिजल्ट अगर एक्सपोर्ट्स पे टैक्स इम्पोज करेगा तो एक्सपोर्ट्स का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर इंपोर्ट्स पे टैक्स इम्पोज करेगा तो इंपोर्ट्स का प्राइस इंक्रीज होता है. ठीक, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो हमेशा जो उनकी टेरिफ पॉलिसीज थे वो डिस्क्रिमिनेटरी थे. दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़. वो क्या करते थे, वो यहाँ से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई दैट अलाउड टेरिफ फ्री रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. उन्होंने जो यहाँ से रॉ मटेरियल्स लिए, फॉर एग्जांपल अस दपो यह हसा इंडिया, यह हसा ब्रिटेन, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी. तिमो क्या कोर तम साथ, यम ये पे निवन रॉ मटेरियल्स, ठीक, तो यम रॉ मटेरियल्स यमन पे टैक्स इम्पोज कर कह, दे टेक इट टेरिफ फ्री. ठीक है, तम यमन पे टेरिफ इम्पोज कर कह, बट यमन पे यम साथ तम ब्रिटिश पे फिनिश्ड गुड्स पे कन मार्केट यथ मज हिंदुस्तान किस मार्केटस मज फिनिश्ड गुड्स कन तो तिमन पे टेरिफ इम्पोज कर. ठीक है, तिमन पे टैक्स इम्पोज कर. टेरिफ इज एक्चुअली अ टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. टेरिफ एक्चुअली अ टैक्स इम्पोर्टन पे तो एक्सपोर्टन पे. तो यमन फाइनल गुड्सन पे, प्रोड्यूसड गुड्सन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे यमन पे टेरिफ इम्पोज कर. एज ए रिजल्ट दे टेक इजीली रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया and they process them in British and take finished goods in the Indian market. As a result अस हेको वनित यमो कर ये पब्लिक सेक्टर डेवलप कहीं, यम निवन ब्रिटेन. तो तुम वुचमुत दादाबाई नौरोजीन ड्रेन थ्योरी आसो तुम पढ़मुत थोड़ा बहुत, तथ मज वुच तमो कि यमो कथ कन कर ड्रेन ऑफ वेल्थ हिंदुस्तानस मज. ठीक, सेकंड थिंग अब गो ये कि यम पॉलिसीज यम टेरिफ पॉलिसीज यम अगेंस्ट. ठीक, सेकंड थिंग विच वाज which we can say that which is responsible for the systematic deindustrialization in case of Indian industries was that disappearance of princely courts. ठीक, यम प्रिंसली कोर्ट्स जो ये प्रिंसली कोर्ट्स थे वो ख़त्म हुए. प्रिंसली कोर्ट्स क्या ख़त्म हुआ होता है थोड़ा बहुत. एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज सम प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. हिंदुस्तानस मज कह प्रिंसली स्टेट्स यमन ब्रिटिश गवर्न कर कहें, यमन पन राजाज आसन. तो आसो वुचमुत मूवीजन मज, तो आसो वुचमुत सीरियलन मज ये मुगलन हंद यम कोर्ट्स वुचन या कह प्रिंसली कोर्ट्सन हंद वुचन, तिमन आसन तिम तस्वीर, यम वाल्स आसन दे वर हैंगिंग विद पिक्चर्स, तिमन आसन तिम नकाशदार तिम चीज़. ठीक है, मतलब प्रिंसली कोर्ट्स यम तत आसन.
यम गई डिसएपियर मतलब ये यम हिंदुस्तान सहित रले यम स्टेट्स प्रिंसली कोर्ट्स रूद न कह अमे ब्रोह यम प्रिंसली कोर्ट्स यम क्या करान यम ते इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स मज प्रोडक्शन नेरान मेजर प्रोडक्शन यस नेरान नकाश या बाकी चीज़ यम डिमांड करान कुम प्रिंसली कोर्ट्स यम पन्न कोर्ट्सन मज पन कोर्ट्स सजावन या बाकी चीज़ तुम वो तिहद तम पलो यम लगित तिमन पे नकाश यम तम बाकी तिमन तम मानतो तुम सोन लगित या बाकी चीज़ लगित तम वारिया ज़्यादा यमन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्टन हंद डिमांड करान गो यम सात प्रिंसली कोर्ट्स खत्म गई एज ए रिजल्ट द डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स द डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स द डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन कंटिन्यूसली डिक्रीज यह गई डिक्रीज एज ए रिजल्ट उस इंडस्ट्रियल सेक्टर गो अत मज गई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज समझ आवा दोयम काज कि यम प्रिंसली कोर्ट्स यम प्रिंसली स्टेट्स यम रले हिंदुस्तान सहित ठीक है वेल यम प्रिंसली स्टेट्स रले हिंदुस्तान सहित तो यम प्रिंसली कोर्ट्स गई खत्म एज ए रिजल्ट द डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स गई थोड़ा बहुत कम तो त्रेयम चीज़ क्या गो ये इंडियन एग्रीकल्चरस यूत क्या गो यह प्रॉब्लम देयर वाज द कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स यम साथ इंडिया तो ब्रिटिशो ट्रेड करान वन आई मशीन मेड प्रोडक्ट्स आए फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान मज हैंडीक्राफ्ट्स मज नेरान योर यमन मशीन मेड प्रोडक्ट्स ठीक है तो हैंडीक्राफ्ट्स तुम वो यम सात कह चीज़ अत सत बनान फॉर एग्जांपल अत सत तिल लागान पे मशीन सत तिल लागान इस मशीन सत तिल तथ ज़्यादा डिजाइन या उस चीज़ अत सत बनान वन मशीन सत बनान सह बनान थोड़ा बहुत बेटर ठीक है तो अम हेक जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर अम हेक कंपटीशन कर कत सहें यम तम प्रोडक्ट्स वन मशीन मज आए यम ओतान हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री बनावन वन बन यम चीज़ मशीनन मज तो यमो हेक यमन सहित कंपटीशन फेस कर एज ए रिजल्ट उस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर यस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस गई हिंदुस्तान मज यह गई इनक्रीज ठीक है वी कैन से दैट कि यमो हेक कंपटीशन फेस कर त्रेयम चीज़ गई कि चूरम चीज़ गो कि न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड गई नई तरीक आए डिमांड तुम वो न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड मतलब क्या गो यम सात एडवांसमेंट यम सात साइंस यम सात टेक्नोलॉजी या यम सात ब्रोह ब्रोह सिविलाइजेशन पकान तिहंज डिमांड्स तिहंद नीड्स तम थोड़ा डिफरेंट गसान तुम वो अगर तुम याद आसो यम तुहंद एंसेस्टर्स ग्रैंड फादर्स ग्रेट ग्रैंड फादर्स यम सात तिहंज डिमांड तुम वुचान 1950 1900 में तिमन कम डिमांड डिफरेंट डिमांड यम सात पन डिमांड आज वुचान सन पैटर्न ऑफ डिमांड सन पैटर्न ऑफ डिमांड थोड़ा डिफरेंट ठीक है गो विद द इंक्रीज इन टाइम कि पैटर्न ऑफ डिमांड गई चेंज लुकन हंद टेस्ट्स ठीक द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल चेंज्ड यम गई चेंज व्हेन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस चेंज्ड तम साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यह कर कि तिमन दे हैव टू कीप पेस विद द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल मगर यमो हेक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हेक तूता कीप पेस सहित अत कहें एज ए रिजल्ट यह गो खत्म तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वो मे गोड़े कि अम सत गो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर खत्म तिज रेलवेज हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटीरियल्स फ्राम इंडिया यमो कोर यमन मदद इजीली रॉ मटीरियल्स निन तो ब्रिटिश पे फिनिश्ड गुड्स अन्न खतर कर रेलवेजन यमन मदद अगर न रेलवेज आसान कहें तुम याद 1800 शायद 53 मज गोडनिच ट्रेन गोडनुक रेलवे ट्रैक गोडनिच ट्रेन हिंदुस्तान मज पचम बम्बई टू थाने यथ वन तो अम क्या गई कि अम गो मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स गो वारिया ज़्यादा फ्राम इंडिया टू ब्रिटिश एंड मूवमेंट ऑफ फाइनल गुड्स फिनिश्ड गुड्स फ्राम ब्रिटिश टू इंडिया तो गो वारिया ज़्यादा एज ए रिजल्ट युस ये इंडस्ट्रियल सेक्टर यह गो मानतो तुम खत्म यम सात इंडस्ट्रियल सेक्टर गो खत्म अगर वन योर मॉडर्न इंडस्ट्री थोड़ा डेवलप गया तेल प्रॉब्लम क्या मगर मॉडर्न इंडस्ट्री गई तीजा डेवलप कहें ते ठीक है क्या तरन फिक्र कि वन वुचान कि हिंदुस्तान जैसे सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंटन क्या कर हिंदुस्तान में सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट द मोटिव बिहाइंड इट वाज टू एक्सप्लॉइट
Indian raw materials, exploit current Indian raw materials, and to exploit Indian market karun exploit raw materials nin yeti to pan market karun penetrate panin products karin kati sell at maz to yimu suit gay problem Hindustan kes agriculture sectors. To yus sem question he ki yet short answer question he ki ayat maz what are consumer good industry, what are capital good industry, what are PSEs, public sector undertakings, what are tariffs, what are handicrafts, yiman cheezan pe thoda focus dun ya hek to question yet what was the condition of Indian industries at the time of independence and what are the causes of decay of Indian handicrafts or deindustrialization process in India. ठीक कैपिटल गुड इंडस्ट्री ते समझो में यम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस आसन करन यम फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शनस में मदद दियन कंज्यूमर गुड्स गई यम कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री गई इंडस्ट्री यस कंज्यूमर गुड बनाए ठीक है यम डायरेक्टली सन वांट्स करें सेटिस्फाई PSEs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSUs गई तम इंडस्ट्रीज यम मैनेज्ड एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट टैरिफ छ आसान एक किस्म का टैक्स युस एक्सपोर्टन पे कंट्री लागन युस इंपोर्टन पे कंट्री हेकान लगित एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर दोज इंडस्ट्रीज विच मेक प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. Inshallah, tomorrow we will discuss what was the condition of foreign trade of India at the time of independence. Thank you.